evening, praise the Lord. So really, it's a really honor and joy to be with you this evening. I never thought that one day I will be standing in New Zealand and preaching about Jesus Christ. You know, because in India, it's a big task when we go and we take gospel further, a lot of oppositions, a lot of challenge. So we never found comfortable place, you know. Anytime we think anything can be happen. But I am in New Zealand since last 1 week. There is no opposition. Everything is cool. Everything is good. And the weather is very, very good. But in India, we find a lot of, dhakka mukki and a lot of challenge when we take gospel further. But it's really joy to come to this country and to see how God is great, how God is big who created heavens and earth. And this is, as the word says, you will be my witness even to the end of the world. So when I was coming, I just Googled the map and I found that New Zealand is end of the world. So I'm really excited, and I believe that his promise, become true in my life, that you will be my witness. So I am his witness tonight in New Zealand, and I highly respect Pastor Moses, and I bless his family, his leadership, and everybody from this church. And, I will not waste much time because I will really want to take you to the Word of God. But from this, way I will be speaking in Hindi because I am going to use some Sanskrit relevant to some Sanskrit things. So when I speak in English, that really I forget what I have to speak. So brother is going to translate for me. I will try to interpret. Oh, or interrupt. So सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को. All glory and God to Jesus Christ. और जैसा ब्रदर बता रहे थे कि प्यार के विषय में, As I was telling you about love, 15 साल पहले जब मैंने अपनी पत्नी को देखा, वो मेरी पत्नी नहीं थी, बस एक जवान लड़की थी. and 15 years ago when I saw this beautiful woman, she was a young girl, and और इससे पहले कि मैं उसे देखूं, हमारे कॉलेज के हॉस्टल में इसकी बातचीत हो रही थी. and in my college hostel the boys were talking about her, और सब यही कह रहे थे कि द मोस्ट सबसे जो सुंदर लड़की है वो दीप्ति है. and the most beautiful girl is Dipti there. So I would like to ask Dipti to stand up and tell them, am I right or not? So, Dipti, if you can stand up and tell others. Please come forward. Do you feel so? So, thank you very much, Dipti. तो सब लोग बोल रहे थे कि दीप्ति सबसे सुंदर लड़की है और उसे कौन पटाएगा. and he said, who will capture her, who will get her. और मेरे दिमाग में आया कि यार ये कौन लड़की है जिसके विषय में ये लोग बात कर रहे हैं. and I was talking to them, who is this girl that everybody is talking और about. 3 दिन तक दीप्ति कॉलेज नहीं आई, लेकिन दीप्ति की बात ही कॉलेज में हॉस्टल में होती and the थी. whole college was talking about Dipti. For 3 days she hasn't been in और the college. मैं बहुत परेशान था कि भैया तुमने पागल कर दिया, वो लड़की है कौन. and I said, man, I'm crazy, who is this girl? For last 3 days I और haven't seen आप her. विश्वास करिए, जब तीसरे दिन जब क्लास चल रही थी और जब दीप्ति ने क्लास में एंटर and किया, the third day when she walked into the classroom, and when I saw her, oh, it was a big light. I felt बड़ी ज्योति आई. और परमेश्वर का आत्मा मुझे बताने लगा कि यही दीप्ति है. and I felt God was telling me this is a woman to marry. And within 5 seconds I decided, 5 सेकंड के अंदर मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी पत्नी होगी. and after 5 seconds I decided this is going to be my wife. मैंने दूसरे दिन ही जाकर बोल दिया कि तुम मेरी पत्नी होगी. and I told her that you're going to be my wife. और वो बहुत शॉक्ड हो गई कि ये And तुम she क्या got बोल shocked. रहे हो. She said, "What are you saying? मैं तुमको जानती भी नहीं. I don't even know you. और मैंने उससे कहा सन 2006 14 फरवरी मैं तुम्हारे घर बारात लेके आऊंगा. I said in 2006 I will bring my whole bridal और party. जो मैंने कहा वो परमेश्वर ने पूरा and किया. that is what I said, God made सन it happen. 2006 14 फरवरी को हमारी शादी and हुई. 14th February 2006 I got married और to हम her. दोनों ही इंजीनियर्स हैं. We both are engineers by मतलब profession. हुआ करते थे. We used to be engineers. अब मैं सिर्फ बाइबल पढ़ाता Now हूँ. I am teaching Bible. मैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर था. I was working in Samsung मेरी Electronics. वाइफ टाटा में इंजीनियर थी. and she wasn't working for और Tata. 2005 में हमारी शादी से पहले परमेश्वर ने कहा सब कुछ छोड़ दो and 2005 the Lord told us to leave everything और जाकर सुसमाचार प्रचार and करो. start preaching the gospel. प्रभु ने मुझे वचन दिया, प्रेरितों के काम 22-21. and from the book of Acts chapter 20 and verse 21. वहां पर लिखा है मैं तुझे दूर दूर अन्य जातियों के पास भेजूंगा. There it says that I will take you far nations in many languages. मेरे लिए ये वचन नया नहीं था. and for me it was not a new thing. क्योंकि जब मैं 14 साल का था, because when I was 14 years old, एक बार चर्च चल रहा था. was a church going on. एक आदरणीय पंडित जी चर्च में आ a गए. priest walked in, a Hindu priest walked in. वो अंदर आए और वो आकर सबसे ऊपर जहां हमारे भाई ड्रमर वाले बैठे हैं वहां बैठ गए. He went and sat straight at the throne room where the chair was. और
उनकी उपस्थिति पूरे चर्च को पसंद नहीं थी And the whole church got shocked and they were not very happy with him. और सब लोग उन्हीं को देख रहे थे कि ये पंडित जी चर्च के अंदर क्या कर And रहे they हैं said, what is this priest doing inside the church? और उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं आपको कुछ दुख नहीं दूंगा, मैं तो आपके गीत सुनता रहता हूँ, यहाँ पास ही रहता हूँ। He said, don't worry, I listen to you or songs from outside, but today I've decided to come. और आज मैं आपके साथ संगति करना And चाहता today I want to have fellowship हूँ। और with फिर you. चर्च चलने लगा And the church began. और उसके बाद जब पंडित जी, जब चर्च खत्म हो गया, पंडित जी ने कहा मुझे कुछ कहना है And when the church finished, the priest of the stood up and said, I want to say something to you all. और लोग डर रहे थे कि पता नहीं है क्या कहेंगे And the people got scared. What would he say? और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जवान बच्चों ने इतना अच्छा गाया, भैया ने कितना अच्छा बजाया, उन्होंने कितना अच्छा बताया, एवरीथिंग इज गुड। He said, I like watching all these young people dancing, praising. That was so nice of you guys. लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई। But one thing I don't understand. पादरी साहब ने कहा कि यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह ही परमेश्वर He है। said, pastor said Jesus is the only God and he is the only life. मैं इस बात से सहमत नहीं I'm हूँ not agreeing with this. क्योंकि मेरी दृष्टि में जिन जिन देवी देवताओं की मैं उपासना करता हूँ वो परमेश्वर हैं Because the God that I worship, they are also my God and they are God. और वो एक बातचीत चाहते थे कि हम बैठकर एक अच्छे से बातचीत करें कि यीशु मसीह क्यों परमेश्वर। And he wanted to know why Jesus is God. और मैं संडे स्कूल में था I was in Sunday तो school. मुझे लगा शायद मेरा संडे स्कूल का टीचर जाएगा So I thought my Sunday school teacher will stand up and say something. और मैंने सोचा शायद पादरी साहब जाएंगे I thought my बातचीत करने। pastor will stand up and say something. लेकिन भैया की तरह दो मोटे लोग आए And two big people came like me. और उन्होंने आदरणीय पंडित जी को कहा कि नहीं नहीं पंडित जी ऐसी बातें नहीं करते और ऐसा करते हुए बाहर ले गए। And they pulled the priest out and said, no, don't talk like that. And they took him out of the building. और उतनी भीड़ में शायद वो मेरे लिए सही उत्तर नहीं था। And for me, that wasn't a very good news. मुझे लग रहा था कि बैठकर बातचीत करनी चाहिए कि यीशु मसीह क्यों। And I thought it'll be good to talk who is Jesus and why Jesus. क्योंकि मैं तो बचपन से यही सुनता आया हूँ यीशु मसीह परमेश्वर है। Because I've been believing and I've heard that Jesus is God. पहली बार किसी ने ये प्रश्न सामने रखा कि संभव है कि कुछ और भी परमेश्वर हो सकता है। And that it is possible that besides Jesus, there may be other people who is God. संभव है वो सत्य हो। It could be the right or it उसकी could be बात the truth. सुनने में प्रॉब्लम क्या है? And what's wrong listening to that priest? लेकिन कोई वहां पर समस्या का समाधान नहीं निकला। But nobody brought any answers in that whole crowd. वो वहां से चला गया लेकिन एक प्रश्न छोड़ गया। He went out and he left a question in my mind. और प्रश्न ये था कि क्या यीशु मसीह परमेश्वर And the है? question was, is Jesus is God? और इस प्रश्न की जानकारी के लिए मैंने अपने जीवन के 21 साल दे दिए And I spent 21 years searching this answer, trying to prove if Jesus ये is God. जानने के लिए कि क्या यीशु मसीह परमेश्वर है To know that is Jesus truly the God? और क्या यीशु मसीह भी एक और परमेश्वर है। Or if Jesus is also one of the God? मैंने इन 21 सालों में 544 शास्त्रों को पढ़ा। I have read 540 scriptures in भारतीय दर्शन में वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण महाभारत तंत्र श्रुति बहुत सारे 544 शास्त्र हैं। You heard all the list of names that he has read all the religious books. और सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या यीशु मसीह परमेश्वर है। And so that you can only know if Jesus is God or not. और ये खोज चलती रही। And this search continued in my heart. और आज जब मैं न्यूजीलैंड के आपके इस चर्च में खड़ा हूँ, When I'm standing here today in this church, मैं आपको बताना चाहता हूँ I want to tell you today, कि इस आसमान के नीचे पृथ्वी पर under the heaven and on this earth, अगर हम किसी को ईश्वर कह सकते हैं and if we can say anyone a God, वो केवल यीशु ही है। it's only Jesus Christ is God. कई लोग सोचते होंगे शायद ये एक घमंड की बात है। Many people say you were saying it with proud, and लेकिन अगर मैं एक अच्छा इंजीनियर हूँ if I'm an engineer और मैंने अगर आगरा यूनिवर्सिटी को टॉप किया है and I've done a top studies in Agra University, तो फिर इसमें घमंड क्या है? ये मैं हूँ। that is the truth. I have done well and I have become the top student. अगर यीशु मसीह ने कहा है वो परमेश्वर है If Jesus said that I am God, तो केवल दो यहाँ पर ऑप्शंस हैं। there is only two options. या तो वो झूठ बोल रहा है Either he's a liar या तो वो सच बोल रहा or है। he's saying the truth. अगर झूठ बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। If he's saying a lie, no problems. जो आप सोचते हैं जो आप कर रहे हैं करते रहिए। Whatever you're doing, keep doing it. लेकिन अगर यीशु मसीह सही बोल But रहा if है Jesus is what saying तो is फिर आप truth, खतरे में हैं। then you are in danger. क्योंकि उसने कहा है Because he said, मैं जाता हूँ I'm going heaven, लेकिन फिर आऊंगा I'll come back और again, तुम्हारा न्याय करूंगा। and I will judge the world. जाति जाति के लोग मेरे सामने खड़े And होंगे। all the tribes and tongue will bow देश before me. देश के भाषा भाषा के लोग मेरे सिंहासन के सामने खड़े And होंगे। everyone, every tongue will bow before और me. मैं तुम्हारे शब्दों का और तुम्हारी सोच और तुम्हारे काम का बदला तुम्हें And that दूंगा। I will reward you according to your thoughts and your works and words. अगर यीशु झूठ है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। And if Jesus is liar, then it's no problem. लेकिन अगर वो सही है तो But फिर एक खतरा है। if it is true, then there's a danger in our lives. देखिए इस भवन में बहुत सारी चीजें हैं In this room, there is many beautiful और हर people, चीज का अपना एक उद्देश्य है। and everything has its own place. क्या कोई ऐसी चीज आपको यहाँ दिखती है जिसका उद्देश्य नहीं है, पर्पस नहीं Is है? there anything in this building that has no purpose? सोचिए Think of it. यीशु मसीह संसार में क्यों आया? Why did Jesus came? उसके आने का पर्पस क्या था? Why did he come?
अभी ब्रदर ने मेरा एक छोटा सा परिचय दिया, I introduced my friend here. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I want to tell you, जबकि मेरी पत्नी जो मुझे 16 साल से जानती है, my wife who knows me for 16 years, वो भी मेरा परिचय नहीं दे सकती, she can't give me a proper introduction. क्योंकि परिचय एक महत्वपूर्ण विषय है Because introduction about me is a very important thing. और इसमें भेद छुपा होता है। Because in my introduction there is a secret about me. मैं कौन हूँ, Who I मैं am, क्या सोचता हूँ, what I think, मेरे मन में क्या चल रहा what है, I've been going through in my ये mind. परिचय बहुत विशेष बड़ा है। It is quite a deep and big thing. क्या कोई मनुष्य परमेश्वर का परिचय दे सकता है? Can any man describe God and अगर explain मैं अपने विषय में मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं कौन हूं, जब तक मैं ना बताऊं कोई नहीं बता सकता। unless I am alone can tell you who really I am. क्या कोई मनुष्य परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर का परिचय दे सकता है? Can anybody who is a creator of heaven and earth can describe him? बाइबल बताती है सबने पाप किया है। Bible says everyone has sinned. रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23 पद में हम सब पापी हैं। Romans 3:23 says all have sinned. ये बात जब मैंने एक आदरणीय पंडित जी को कही, When I said to this one priest, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी बाइबल में लिखा है, he ये says तुम्हारे in लिए your है। scripture, it is in your holy book. लेकिन प्रश्न ये था क्या भारतीय दर्शन भी इसके विषय में कुछ कहता है? But let me give you some scriptures of what even the other scriptures of other books talks about. भारतीय दर्शन वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र में लिखा है, In this scripture says, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमा पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। मैं पापी हूँ, I am a sinner, मेरा जन्म पाप में हुआ I was है, born in मैं sin, पाप कर रहा हूँ I am sinning, और करता रहूंगा। and I'll be sinning. भारतीय दर्शन आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, And he says, तुलसी याजक आय के कौन भयो समरथ, कंचन पे कुंचन किन्ना पसार हुआ। इस संसार में कौन ऐसा हुआ जिसने पाप नहीं किया? who is the person who has not sinned? Everyone in this earth has sinned. आदरणीय गुरु नानक साहब कहते हैं, Guru Nanak says सोरठ मोला पहला में, in the 16th chapter, सोरठ मोला पहला पन्ना 596 में, हूँ 596, पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। मैं पापी हूँ, I am a sinner, लेकिन परमेश्वर पवित्र और कल्याणकारी है। but God is holy and He is the one deliverer. काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। आदरणीय संत कबीरदास जी तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में कौन हुआ जिसने क्रोध नहीं किया? Who is the man who has never got angry on this earth? जिसने बुरा सोचा नहीं, Who has never thought bad about it? जिसने अपने हाथों से बुरा नहीं किया। Who has not done evil in his hand? और ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है, दर्शन शास्त्र बताता है, पापम फलम नरकमद यस्तु। एक व्यक्ति जो पाप करता है वो नरक में जाएगा। One who sins goes to hell. अब प्रश्न ये आ गया, हम सभी पापी हैं, The question is, we all are चाहे आप sinners. किसी जाति धर्म भाषा कुल क्षेत्र स्थान के क्यों ना हो। No matter what tribe, language, culture, country you come from. ओ आप धनी हो, आप गरीब हो, आप छोटा बिजनेस करते हो, बड़ा बिजनेस करते No हो, matter you're rich or small, you do a big business or small business, no matter who you are. हम सब फर्क हैं, We all may be different, लेकिन एक चीज हम में समान है, but one thing is common in all of वो us, है पाप। that it is sin. चाहे आप न्यूजीलैंड में रहें, Either you live in New चाहे आप Zealand, भारत में हो, either you live in India, पाप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। sin never leaves you. और अगर हम पापी हैं, And if we are sinners, तो बाइबल कहती है हम नरक में जाएंगे। the Bible says we will go to hell. भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है कि हम नरक में The जाएंगे। Hindu scripture talks that it will go to hell. अब आप बताइए भैया, You tell me, क्या brothers, करना है? what should we do? हम सभी पापी हैं। We are all sinners. क्या एक पापी दूसरे पापी को मार्ग दिखा सकता है? Can a sinner tell another sinner his way? बाइबल कहती है कि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा A सकता। one blind cannot lead other blind. अगर एक अंधा एक दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता तो If वो one- उसका उद्धार करता होता। If one blind can show other man blind, then he will be a savior of that person. आप सोचिए एक बच्चा, छोटा बच्चा बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाए, Imagine a child is fallen in deep hell. बहुत गहरे गड्ढे It में, is fallen deep pit, वो अपनी बुद्धि अपनी समझ से बाहर नहीं आ सकता। and with his own wisdom he can't come out. अगर वो अपनी बुद्धि से समझ से बाहर आ जाता तो वो अपना सेवियर होता, If he could come out, then he is a savior of himself. लेकिन उसको एक बाहरी आवश्यकता की आवश्यकता है। But now he needs a separate power who can pull him out. इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र ऋग्वेद में लिखा है, That's why in the Rigveda it ऋग्वेद says, का 10वां मंडल कहता है, परमेश्वर आप हमें पाप से स्वतंत्र "Say, कीजिए। God deliver me" on the 10th chapter. ओ परमेश्वर, जब तक आप मेरी सहायता नहीं करेंगे मैं you इस गड्ढे से बाहर नहीं आ If you सकता। don't deliver me, I will never be able to come out. ऋग्वेद उसका 7वां मंडल 89 में लिखा है, दया करके हमें क्षमा कीजिए। Lord, have mercy on me and forgive me. ये दया अनुग्रह है।
It's a grace that is asked. गीता का 18 अध्याय 62 श्लोक कहता है, In Gita 18 says, जब महाभारत का युद्ध शांत हो गया when there was a big fight finished, और अर्जुन श्री कृष्ण के पास में गए, and when Arjun went to Shri Krishna, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं पापी हूँ। and he said, I am a sinner. ये बहुत बड़ा विषय है कि एक व्यक्ति स्वीकार कर ले कि वो पापी है, It's a big thing for a man to recognize that he's a sinner. क्योंकि आज सबसे बड़ी यही मुश्किल है, हम सभी सोचते हैं कि हम सभी अच्छे हैं, Because we all think ourselves that we are good people. लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि वो पापी है। I want to thank God that Arjun accepted that he was a sinner. उन्होंने कहा मैं पापी हुआ, मेरा उद्धार कैसे He होगा? said, I am a sinner, and how could I be saved? श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक सलाह दी, And Shri Krishna gave an advice to Arjun गीता 18 अध्याय 62 श्लोक on में, 18th chapter of verse 62 in Gita. वहां लिखा, तुम्हें विशरणम गच्छ सर्वभावेन भारतनम तत्त प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। अर्जुन सब धर्मों का त्याग कर दो Arjun, leave all the religion और उस परमेश्वर के पास जाओ and go to that God, जो अपने अनुग्रह से तुम्हें क्षमा दया कर देगा, तुम्हें माफ कर देगा। one who by his grace can forgive you and cleanse you. आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, As Sant Tulsidas said, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कहियति दीन प्यारे, देव तनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। आदरणीय तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने उद्धार को प्राप्त करने के लिए किसके पास जाऊं? Tulsi said, where do I go to find my own salvation? जितने भी देवी देवता, गुरु, महात्मा, पीर, पैगंबर, संत, सन्यासी आए, वो सब पापी थे। Everyone that came, they were all sinners. आप समझ रहे हैं? You're listening to me? ये एक बड़ा मुद्दा है। It's the biggest thing. आज जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, When we read the Bible, बाइबल में यीशु मसीह अकेला नहीं है, Jesus is not alone there. और यहाँ पर हजारों लोगों की संख्या है। In fact, there are thousands of different characters. बाइबल बताती है अब्राहम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, लेकिन वो भी उसने भी पाप किया। The Bible says Abraham was righteous, but yet he was a sinner. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने नूह को धर्मी कहा, लेकिन फिर भी एक वचन जहां लिखा है कि सबने पाप किया, उसमें नूह भी आता है। And even we know that Bible talks about Noah being righteous man, yet he ओ was a sinner. एलिया, एलीशा, दाऊद सब पापी, All the Bible men were sinners. सब हम भी और आप भी। Or you and I are sinners. अब प्रश्न ये है The question is कि this: अगर आप पापी हैं if we are sinners, तो आपके लिए दंड है। then there is a punishment. आप क्या चाहते हैं कि अगर आप पापी हैं तो आपको दंड दिया जाए या क्षमा कर दिया जाए? What would you like if you are a sinner, or would you like a forgiveness, or would you want a punishment? आप सोचिए, अगर आप Think कोई what would you like? अपराध हो जाए, चाहे जाने में या अनजाने में, और उसकी एक बड़ी सजा आपके लिए रखी जाए, आप उस सजा को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे? And even by mistake or knowingly you've done something wrong, would you like to take the punishment? कोई जाना चाहेगा 20 साल की जेल के लिए? I don't think anybody likes to go for 20 years of imprisonment. ये बहुत कठिन है, क्योंकि हम सब स्वतंत्र रहना चाहते Because हैं। we all like to live in freedom. मनुष्य बहुत चालाक है। Man is very smart. आज मैं कल एक वीडियो देख रहा था, I was watching a video yesterday. चाइना के लोगों ने पहले नकली चावल बनाया। The people of China made a fake rice. मैं चाइना के लोगों से क्षमा चाहता हूँ, From people of Chinese, I ask you forgive me. लेकिन मैंने ऐसा वीडियो देखा This is है, the video I watched. और अब तमाम प्रकार की नकली सब्जियां बनाई जा रही हैं, Now there is a fake vegetables are created, और वो सब चाइनीज लोग कर रहे हैं। and this is happening in the Chinese मुझे market. विश्वास है यहाँ कोई चाइनीज तो नहीं बैठा है भैया। I hope this is not Chinese person. प्रभु का धन्यवाद हो। Thank God. प्रश्न ये है, विषय ये है, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी जाति के लोग हो, सब गड़बड़ कर रहे हैं। No matter what religion, all of them are doing wrong. अब चूंकि हम जानते हैं कि हम दोषी हैं, तो हम अपने दोष पर दोष को छिपाना चाहते हैं, And because we are sinners, we like to cover up and we hide ourselves. और कई बार हम अपने न्याय से बचने के लिए न्याय को खरीद लेते हैं। And to escape from the judgment, we buy or we bribe things. कुछ तरीके बताता हूं जो मनुष्यों ने परमेश्वर की दृष्टि से उस पाप से बचने के लिए कुछ तरीके निकाले हैं। And let me give you some viewpoints of how humanity has tried to get salvation. मुंडकोपनिषद 3:2-3, कठोपनिषद 12:23 में लिखा है, नायमातुना प्रवचने लभ्यो ना मेघे ना बहुना श्रुतेन। ज्ञान की बातें, सत्संग में जाओगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। He said, go to the religious places, then you'll be saved. अगर आप ज्ञान की लुभावनी बातें सुनेंगे, आपका उद्धार हो You'll जाएगा। hear lots of wisdom, word of wisdom, you will be saved. लेकिन मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारतीय दर्शन इससे असहमत है, ये संभव नहीं है। And all the other religious books are not accepting this fact. विवेक चूड़ामणि 6 में लिखा है, It says, वदंतु शस्त्राणि यजंतु देवान कुर्वंतु कर्माणि भजंतु देवता। शास्त्रों को पढ़ने, देवी देवताओं को यज्ञ करने, पूजा करने से मुक्ति प्राप्त होगी। and it says that if you do a religious rituals and follow and study the scriptures, then you will be saved. लेकिन ये संभव नहीं है। विवेक चूड़ामणि कहता है ये संभव नहीं है। But it says it's not possible. स्कंद पुराण काशी खंड 6 में लिखा है,
न शरीर मल थाक तो नरो भवती निर्मला मनसु तु मले व्यक्ति भवति सु निर्मला, कि आप जीवन भर पाप करिए और 5 साल में एक बार जाकर नहा लीजिए। He said, you can do all the sin, but every 5 years you go and clean yourself, wash yourself, and you'll be clean. संत कबीरदास जी कहते हैं नहाए धोए से क्या हुआ, मन का मेल ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। He said, no matter what happens, if you dip, you won't be clean. Let me explain. एक मछली जो जीवन भर पानी में रहती A है, fish that stays in the water, और वो झूठ भी नहीं बोलती, never lies, और वो पड़ोसी की चुगली नहीं करती, doesn't backbite about the, और वो सिगरेट भी नहीं पीती, doesn't drink cigarettes, और वो उसको दारू भी नहीं चाहिए, doesn't want beer, or वो wine. एक छोटा सा अपना जीवन जीती रहती है। And that poor fish lives in the nice pond. और कबीरदास जी कहते हैं जब पानी उसकी बदबू नहीं मिटा सकता, If the water cannot remove the smell of that तो fish, तुम्हारे अधर्म को कैसे मिटाएगा? so how could your unrighteousness can न be taken? शरीरम मल त्याग तो नरो भवती निर्मला मनसु तु मले भवक्ते से बस सुनमिला। मनुष्य पानी में जाकर गड़ जाए, मर जाए, फिर भी उसका अपराध नहीं क्षमा होगा। No matter how much, if he dip himself in water or dies in the water, his sins will never be cleansed. और कई बार ऐसा माना जाता है कि कोई मर जाता है, उसको नदी में तैरा दे भैया, इसको मोक्ष मिल जाएगा। Some people think if he dies, throw in the water and then holy water and they'll be cleansed. तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता Let me हूँ। tell you some important things. भारत में एक प्रथा है, In Indian culture, we have a ritual. अगर कोई व्यक्ति मर जाता है If somebody dies, तो उसके लिए तीये की बैठक होती है, 3 days of sitting उसका happens, चौथा मनाया जाता है, and the 4th day, और उसके लिए सेलिब्रेशन होता है। and they do a celebration. उस मरे हुए व्यक्ति की एक बड़ी सी तस्वीर बनाते हैं, Big pictures is made, और उसका जो नाम होता है and his name is there, उसके नाम के आगे स्वर्गीय जोड़ दिया जाता है। and we put heavenly. आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर देखी है जिस पर लिखा हो नरकीय अग्रवाल जी, Have you ever where it says hell so and so? और नरकीय श्री लालाराम और श्रीवास्तव जी, और नरकीय whatever name yours? You never see a person going like this. आपने कभी कोई तस्वीर देखी है, आप मुझे बताइए, जहां पर किसी महिला, बच्चे, पुरुष के नाम के आगे नरकीय लिखा हो, चाहे कितना बदमाश हो, लेकिन वो कहाँ गया अब? Where did he go? Even though how bad he was, where does he go? He goes to heaven. और मनुष्य बड़ा चालाक है, Man is very clever. वो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना He चाहता makes है। his way thinking that he's going to go heaven. देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या लिखा है, नक्षत्र इति प्रक्षबाल मर्थो तिवतर अर्थो ही अथर्ष नक्षत्री कार्यास्ति। दर्शन शास्त्र बताता है मूर्ख लोगों को देखना है तो उनको देखो जो नक्षत्र ज्ञान पर भरोसा रखते He हैं। said, look to the fool who looks at the stars and studies stars. मैं बताता हूँ, भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है कि मूर्ख लोगों ने ग्रहों पर विश्वास किया। This foolishness to believe on those planets. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें ग्रहों पर नहीं लेकिन अनुग्रह पर विश्वास करना सिखाया है। But God has called us not to believe in the planets but on His word and His grace. बाइबल में लिखा है कि एक बार जब यीशु मसीह का जन्म, एक ही बार हुआ था, यीशु मसीह का जन्म हुआ, When Jesus was born, ज्योतिषी यीशु मसीह के पास में, some wise people came to Jesus. हिंदी की बाइबल आप पढ़ेंगे उसमें ज्योतिषी शब्द आया है, In Hindi scripture it uses the word Jyotishi. और मैं इस पर एक बार प्रचार कर रहा था, I was preaching one day और एक आदरणीय ज्योतिषी बाहर बैठे हुए थे, and one Jyotishi, the scholar, was sitting outside. वो आकर कहने लगे कि मैंने सुना है कि ईसाई लोग ज्योतिष विद्या पर विश्वास नहीं करते, लेकिन तुमने बताया कि तुम्हारी बाइबल में लिखा है। He said, I know the Christians don't believe in Jyotishis and how palm readers, astrologers, yeah, and your Bible talks about astrology. मैंने कहा भैया मैं तुम्हारी तरह इतना ज्ञाता तो नहीं हूँ, I said, I'm not smarter like you, लेकिन मैं इतना जानता हूँ but I know one thing. कि अगर जो बच्चा अभी पैदा हुआ है If the child who is born now, उसके आगे ज्योतिषियों ने दंडवत कर दिया, उसको नतमस्तक किया, I said the astrologers worshipped him. वो बाइबल कहती है वो दंडवत करने लगे, उसको नीचे गिर गए। They bowed before him and worshipped him. अभी तो यीशु मसीह ने कुछ बोलना भी शुरू नहीं किया। Jesus had not even started to say any word. आप सोचो जब वो खड़ा होगा तब क्या होगा। Imagine when he stand up, what would he say? That is a small baby. आप and समझ people रहे are हैं falling before मैं him. क्या कहना चाहता हूँ। You understand what I'm trying to say? ठीक है, दर्शन शास्त्र में लिखा भैया आप मुझे मत बोलना, कहो आपकी भैया आपने बोला था। You don't say that you are telling me. मैं कौटिल्य अर्थशास्त्र से पढ़ रहा हूँ, नक्षत्र इति प्रक्षित बाल, मूर्ख लोग नक्षत्रों पर, ग्रहों पर, ग्रह आपकी दशा बदल देंगे। And it's foolishness to believe in all those things. मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमारे देश में अभी इस समय वास्तु दोष बहुत हाई बूम पर चल रहा है।
वास्तु दोष is घर का shape, if you change the Okay. shape of house, then you will have blessings. Yeah, in India we have this, before you build a house, you go to your priest and find out which direction the house should be. मुझे एक बात all that समझ kind. में नहीं आती, ये वास्तु दोष घरों को ही क्यों लगता है? Why does it require for the house only? ये बियर बार को, ये ठेकों शराब के ठेके पे क्यों नहीं लगता? Why it is not used for the beer factory, other factories? आप कहते हो ये घर की दीवार तोड़ो, ये तोड़ो, और दारू का ठेका तुम कहीं भी खोल लो, लोग वहां पहुंच जाएंगे. He said, you can break this wall, break that wall, but you can open a beer shop anywhere. हाँ, फिर आती है एक नई बात. Now, another new thing comes in. मैं एक जल्दी से कहानी बताता हूँ. हमारे सत्संग में एक बहन आती है. There's a lady who comes to our meeting. सत्संग. Okay. तो इससे पहले वो यीशु को नहीं जानती थी. And she did not know the Lord before. और तो किसी पंडित जी ने, आदरणीय पंडित जी ने बताया कि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाओ. And respected priest told him that give her a bread to the black dog. अगर आप काले कुत्ते को रोटी खिलाओगे तुम्हारी ग्रह शांत हो जाएंगे. He said, if you give a bread to the black dog, then your stars will change. Okay. तो उन्होंने रोटी बना ली. So she made the roti. और अब वो काले कुत्ते को ढूंढने निकल Now she पड़ी. began to look for a black dog in the town. और सुबह से शाम हो गई, काला कुत्ता नहीं मिल She रहा. couldn't find one in the whole town from morning to बहुत evening. दोपहर में उनको एक काला कुत्ता मिला. After a long search, she found one. और वो black बहुत dog. खुश हो गई कि चलो एक तो मिला. She said, at least I got one dog. वो उस कुत्ते को रोटी देने वाली थी. She was about to give a dog, और जैसे ही कुत्ते ने पीछे मुड़कर देखा, and the dog turned that side. वो आगे से सफेद था. In the front, he was a white. उनका सारा परिश्रम खराब हो गया. All her labor got vain. और वो निराश हुई घर आई. She came back अपने tired. पति से कहा कि भैया काला कुत्ता नहीं मिल रहा She है. said, I can't find a black dog in और the मेरे लिए एक काला कुत्ता लेकर आओ. Find a one black dog in the तो town. वो एक नया दूसरे दिन काला कुत्ता खरीद के लेकर आए. Then he went and bought a black dog. एक महीने में कुत्ते ने उनके ग्रह और भारी कर दिए. In 1 month, the dog's expense went up. इधर शूशू, उधर पोटी, उधर बदबू. The whole house became more messy. बहुत मुश्किल हो गया. बहुत मुश्किल हो गया. It became very hard for her. किसी ने उनसे कहा, भैया जी, He said, brother, आप ये सब करना बंद कर दो. stop doing all this वो foolishness. सीधी गली जाती है. There's a one street road go, वहां पर यीशु सत्संग का बोर्ड लगा है. and there's a board there, issue satsang. वहाँ यीशु सत्संग में चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा. He said, go there, everything will be fixed. वो यीशु सत्संग में आई. So she came to the meeting. हमने उन पर हाथ रखा. We laid our hands. उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया. She received the Holy Spirit. 2 मिनट में ग्रह शांत हो गए. In 2 minutes, the whole cry was stopped. परमेश्वर महान है. God is great. बाइबल बताती है तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है. The Bible says your works are like a right. आज लोग जीव जंतु को खाना खिला रहे हैं, चींटियों को खाना खिला रहे हैं. Today people are feeding to animals, cat, also ants and everything. भारत में ये एक विश्वास है. People believe in India. देखिए, मैं विश्वास का निरादर नहीं करना चाहता. I would not want to disrespect the beliefs. लेकिन आप that सोचिए, परमेश्वर ने केवल आपको दिल नहीं दिमाग भी दिया है. God not only gave you heart, but He also gave you brain. बहुत एक छोटी सी बात आपको समझनी है कि जो आप विश्वास करते हो वो आपको समझ में भी आना चाहिए. I want you to also understand what you believe. You must also understand what you believe. और मैं अगर विश्वास करूं कि मेरी पत्नी सुंदर है और ना हो तो गड़बड़ हो जाएगी. And if I believe my wife is beautiful, if I don't, if अगर she's मैं not, then I'll have विश्वास problem. अगर वो है तो ही ठीक है. If she's beautiful, then it's good. आप समझ रहे हैं. इस वक्त मैं इस समय मैं न्यूजीलैंड में खड़ा हूं. I'm in New Zealand. और मैं कहूं कि नहीं, मैं तो दिल्ली में हूं. And I say no, I'm standing in Delhi. पहाड़गंज में खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं. I'm preaching in Pahalganj. तो मेरा ये विचार जो विश्वास है गलत है. My faith is wrong. क्योंकि विश्वास के अंदर मैं क्या बोलूं, विश्वास के अंदर Reasoning. हाँ, रीजनिंग होना चाहिए. In my faith, there should be reasoning. What you believe in your heart must make sense in your mind. You know, yes. जो English में बोल दिया. ठीक है. तो ऐसा विश्वास नहीं करना है जिसके अंत में आपको निराशा मिले. And so you don't have to believe something that you will be disappointed in the end. दर्शन शास्त्र कहता है, बाइबल कहती है तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं. The Bible says your faith, your works are like filthy rags. कई मेरे भाई बहन सोचेंगे शायद ये बाइबल में लिखा है इसलिए ईसाइयों के लिए होगा. You may think that this is only for Christians. लेकिन सुनिए, विवेक चूड़ामणि में क्या लिखा है. Listen to the scriptures. न योगिन न सांख्यन कर्मणानो न विद्याया ब्रह्मैक्यत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा. ना तुम्हारे योगा करने से, Neither by doing a yoga, ना सांख्यन, ना तुम्हारे माला जपने से, neither counting the names, और ना तुम्हारे धर्म के काम करने से, neither by doing the good ना works, बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने से either by lots of gathering of तुम्हें knowledge, मोक्ष नहीं मिलेगा. you will never find your क्योंकि salvation. मोक्ष ब्रह्मैक्यत विद्यते सिद्धाय ना, मोक्ष परमेश्वर के साथ संबंध है. And salvation comes by having a relationship with the जब living तक God. परमेश्वर आपके साथ संबंध नहीं रखेगा, आप कैसे उसके साथ संबंध रख And सकते हैं. until God has a desire to have a relationship with you, you will never be able to have a अब एक समस्या है कि परमेश्वर आपके साथ संबंध
क्यों नहीं रखना चाहता? Why God doesn't want to have a relationship with क्योंकि man? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है लेकिन आपके पाप से घृणा करता है। God loves you but he hates your sin. आप कल्पना कीजिए आप खाना खा रहे हो Think about you eating your और food आपके खाने में छिपकली गिर जाए and in your food a lizard falls और आप उस खाने को खाएंगे, and you start eating. आप शायद उस खाने को फेंक देंगे Would you eat that food or you'll throw और that food? शायद उस खाने को आप कुत्ते को भी नहीं देंगे, You don't want to even give it to your dog. और क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद वो जहरीला हो गया है, अब ये इससे कुत्ता भी ना मर जाए। Maybe you are afraid if you give this food the dog will die too. मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है My friends, God loves you लेकिन आपकी मक्कारी से प्रेम नहीं करता, but he doesn't love from your foolishness of आपके belief. झूठ से प्रेम नहीं He doesn't करता। believe, he doesn't love you on your lies. पाप एक छोटा सा शब्द है A word sin is a small word, लेकिन इसकी गंभीरता बहुत बड़ी है। but it is a very deep and real thing. मैं आपको सिंपल सरल शब्दों में समझाता हूँ। Let me give you a simple explanation. हर वो चीज जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, Everything that is that God hates, वो पाप है। it is sin. उदाहरण के लिए Example, गीता का 7 अध्याय 21 पद 22 पद में लिखा है Gita 7:21 says, और यजुर्वेद 36:3 के अनुसार भी and न तस्य प्रथमास्ति यश न मदसन अन्नम प्रवशन्ति समूह उपासते। दर्शन शास्त्र कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, पवित्र है God is spirit, और वो पवित्र है, he is holy, इसलिए उसकी मूर्ति मत बनाना। and therefore don't make any statue. अगर तुम उसकी मूर्ति बनाओगे If you make a तो statue, परमेश्वर के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर then you will पाओगे। never find God. ना तस्य प्रथमा अस्ति, उसकी मूर्ति नहीं होती जो पवित्र है। Because God is holy and of his holiness there is no statue of his holiness. अन्नम प्रवशन्ति समूह उपासते, अंधकार में जाएगा वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेगा। And one, he will go in darkness, one who breaks the rule of God. मेरे प्रियो, मैं आपको एक मोटी सी बात समझाना चाहता Let हूँ me explain you very कि important. आप सब, हम सब पापी हैं We all are sinners. और अब इस पाप का समाधान क्या है? But what is the answer to the sin? ऋग्वेद का 3 मंडल 62 श्लोक यजुर्वेद 36:3 में लिखा है, In this references, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परमेश्वर, आप जीवन के स्रोत हैं, God, you are the source of light. आप दुख के दूर करने वाले हैं, You are the one who takes the sorrow. आप निर्माणकर्ता, सृष्टिकर्ता You are परमेश्वर the हैं। creator and maker. आप मुझे एक ऐसी ज्योति दीजिए जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं, धुल God, give me जाएं। the ability to overcome so that my sins can be cleared. May we receive your supreme sin destroyer of light. May you guide our intellect in the right direction. Amen. ये प्रार्थना है। This is the prayer they had. बाइबल कहती है परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला And the परमेश्वर Bible says God answers the prayer. और जैसा आरंभ में वचन पढ़ा गया था, परमेश्वर जगत का परमेश्वर है, That God is a God of the world. जहां कहीं उससे प्रार्थना की And जाएगी, wherever people call upon His जो name, कोई उससे प्रार्थना करेगा, whoever prays to Him, किसी भी भाषा में प्रार्थना no matter करेगा, what language you use, परमेश्वर उसका उत्तर देगा। God will answer you. प्रार्थना की गई थी कि परमेश्वर आप हमें एक ऐसी ज्योति दीजिए जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं। God, show me, bring the light so that my sin can be cleansed. एक और महत्वपूर्ण प्रार्थना, The another important prayer we see. वहां लिखा है, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मिथुमा अमृतगमय। ब्रत अरण्यका उपनिषद 1:3-27 में परमेश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर लेकर God, चले। take me from untruth to truth. तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्योति की ओर। Take me away from darkness to light. और मृत्युमा अमृतगमय, हमें मृत्यु से निकालकर जीवन की ओर। And from death to life. और ये प्रार्थना महत्वपूर्ण है। And this prayer is very और important मैं आपको prayer. बताना चाहता हूँ, ये प्रार्थना इजराइल में नहीं की गई थी। This prayer was not prayed in ये Israel. प्राचीन भारतीय प्रार्थना But है। this is the ancient prayer of India. भारत के लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि हम असत्य में हैं, And that the people of India believed that हम they were living अंधकार in में बैठे darkness, हैं, हम that they असत्य are में living in हैं, untruth and they are हमको living in परमेश्वर death. की आवश्यकता है। And that we need God. जब तक परमेश्वर नहीं आएगा, Until we find जब God. तक परमेश्वर अपना परिचय नहीं देगा, Until God reveals Himself. ओ तब तक सब कुछ नहीं संभव है। Until then nothing will be fixed. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, My dear brothers and sisters, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, when you read the Bible, ओल्ड टेस्टामेंट, in Old Testament, ओल्ड टेस्टामेंट की एक विशेषता है, there is some uniqueness about it. वो भविष्यवाणियों पर आधारित है। It's based on prophecy. हजारों भविष्यवाणियां पुराने नियम में लिखी हैं। Thousands of prophecies are आप written. ध्यान से पढ़िए If you read closely, और आप अब नए नियम में आ जाइए। and if you come to New Testament, बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम में एक बार जब खोजा रथ पर बैठकर जा रहा था, one day when
eunuch was going, sitting on his chariot and walking. और प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस के पास में आया, And the Spirit of the Lord took Philippus and और brought him there. फिलिप्पुस को प्रभु ने कहा कि खोजा के पास जा और पूछ जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता है. Go to this eunuch and ask him the verse that you're reading. Do you understand that book of prophet? और खोजा ईमानदार था, He was a very faithful person. उसने कहा नहीं मैं नहीं He समझता. said, I don't understand what. जब तक कोई मुझे ना समझाए. He said, unless somebody comes and explain me what I'm मेरे reading. प्रियो भारत देश की ये प्राचीन प्रार्थना है. This is the prayer of the people of ओम ancient भूर्भुवः India. स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. परमेश्वर आप मुझे ज्योति दीजिए, मेरी समस्या का समाधान कीजिए. God give me light and answer, so bring solution to my और बड़ी problems. समस्या है कि जब परमेश्वर आपको प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, And when God is giving the answers to your prayers, तब आप कह रहे हैं कि ये ईसाई धर्म का now परमेश्वर you're है. saying it's the religion. बाइबल कहती है, Bible says, होशे नबी 4:6 में, Hosea 4:6, बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नष्ट हो गई. my people perish because of the lack of knowledge. गीता में भी लिखा है, It says in Gita, ज्ञान अग्नि सर्व कर्मणानि भस्मातु कर. जब तक ईश्वरीय ज्ञान नहीं मिलेगा इंसान अंधकार में बैठा रहेगा. and until man find the knowledge, he will never be still in darkness. ईश्वरीय ज्ञान महत्वपूर्ण है. Knowledge of God is important. मेरी एक बात समझ में नहीं आती. I don't understand one thing. अगर आपके पास एक बहुत बड़ा घर हो Imagine you have a big house और आप अपने घर के सबसे पीछे वाले कमरे में बैठे हो and think you're sitting in the last room in the corner of your और house, अचानक कोई व्यक्ति आपको ढूंढता हुआ आता है and somebody comes seeking you, और आपकी पत्नी कहती है वो घर में नहीं है. and your wife says he's not in house. इसमें एक रहस्य है. And now this is a secret there. आप घर किसे कहेंगे? What would you call the house? क्या जब आपका पति ड्राइंग रूम में बैठा होगा तभी घर होगा? Will that man, when your husband is sitting all in the drawing room, क्या then वो it's called क्या house? बिल्कुल मेन गेट पर खड़ा है तभी आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि वो घर में है? Or when he's in the main gate, then only you say he's in the वो house? घर बड़ा घर आपका है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं. The big house is yours and you can sit anywhere you want. बाइबल कहती है पृथ्वी परमेश्वर के पांव की चौकी है And the Bible says earth is its और footstool. परमेश्वर कहीं भी अपनी महिमा को प्रकट कर And सकता God है. can reveal his glory anywhere. अगर and उसने anytime. अपनी महिमा को इजराइल में प्रकट किया तो तुमने उसे विदेशी करार कर दिया. Because he was born in Israel, you're calling it foreign God. आप मेरी बात समझ रहे हैं? You're listening to me? वो आसमान और जमीन का परमेश्वर है. He is the God of heaven and earth. वो कहीं भी अपने आप को प्रकट कर सकता He है. can reveal wherever he wants. लेकिन फिर भी Like, again, बाइबल बताती है कि वो भविष्यवाणियों पर आधारित परमेश्वर है. but we know that he's based on prophecy. मत्ती की इंजील 5:17 में लिखा है, Matthew 5:17 says, यह ना समझो मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट करने, लोप करने आया, लोप नहीं पूरा करने आया हूं. I did not come to destroy the book of prophecies, but I came to fulfill those prophecies. मैंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु सारी भविष्यवाणियां आपने इजराइल में कर दी क्या? I said, Jesus, did you fulfill all the prophecies in Israel? आप केवल इजराइल के परमेश्वर हो? Are you only for God of Israel? प्रभु ने मुझे इब्रानियों का पहला अध्याय पहला पद दे दिया. Then God gave me from the Hebrews 1:1. उसमें लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बात की. He said, in past times, God has been speaking to us. मैं कभी इजराइल नहीं गया. I have never been to मैं Israel. भारत से हूँ. I am from India. प्रभु जी क्या आपने मेरे भारतीय बाप दादाओं से बात की थी? I said, God, did you ever spoke to my forefathers of India? मुझे इसका उत्तर चाहिए. I need the answer. 21 साल For 21 years, 544 पुस्तक 544 सिर्फ इस बात को scriptures. जानने के लिए कि क्या आसमान और जमीन के बनाने वाले परमेश्वर ने मेरे देश भारत से कभी बात की है? I wanted to know, did God spoke to my forefathers? मेरे प्रियो, My friends, मैं आपका ज्यादा समय लेना नहीं I चाहता. don't want to take much of your time. मैं आपको सीधी सीधी बात बोलूंगा. I want to tell you straightforward. यीशु मसीह विदेशी नहीं है. Jesus is not a foreign God. उसका परिचय सनातन है. His introduction is eternal. किसी ने मुझसे कहा कि यीशु मसीह 2006 साल पहले पृथ्वी पर प्रकट हुए. Somebody said, oh, Jesus came only 2015 or 16 years और ago. हम तो सनातन धर्म के लोग हैं. And we follow ancient religion. तब We यीशु old. मसीह 5000 साल पहले 6000 साल पहले कहा था. So where was Jesus 5,000 or 6,000 years before? मैंने कहा भैया तुमने बाइबल नहीं पढ़ी है. I said, friend, you have not read the Bible. जब शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग में डाला गया When था Shadrach, Meshach and Abednego were in the तब वहां fire, पर तुम्हारे ताऊजी घूम रहे थे. what was it then? Fourth one walking on the third. Who was walking in the midst of the fire? आप समझ रहे हैं मेरी Do बात? you understand? There was a मैं- fourth man. मैं खरी बात बोलता हूँ. Let me tell you इसलिए straightforward. कई लोग मेरे विरोध में भी हैं. And there are people against me. लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ जाऊंगा. I know where I'm going. मेरे प्रियो, My friends, पुराना नियम in Old Testament, यीशु मसीह की गवाही देता है. is telling you about Jesus. खोजा पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा. Koja is the
Eunuch is reading, but he can never understand. हमारे भारतीय दर्शन में तमाम भविष्यवाणियां हैं. In our old scripture, there are many prophecies. ऋग्वेद का 10वां मंडल 9:6 श्वेताश्वर उपनिषद 3:89 कठोपनिषद 4:13 में लिखा है, प्रजापति यज्ञस्य भुवनेश्वर नाभि तद्रक्त्रम परमात्मम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम. ये वही पुरुष है जो देह के रूप में प्रकट होकर समस्त मानव जाति के लिए बलिदान करेगा. Okay, this is the same God who will die and he will sacrifice himself. और ऋग्वेद का पहला मंडल 134-36 में लिखा, अयम यज्ञो भुवनेश्वर नाभि, वो पृथ्वी की नाभि पर. And that he will be born in the center of the earth. शतपथ ब्राह्मण 3रा स्कंद दीक्षा संस्कार पशु यज्ञम, ये वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर लेकर And जाता he है. is the Lamb of God that will take the sins of mankind. साक्षान्य गुरु रे भरी, ये परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की सामर्थ है. And he says it is the knowledge of God. शतपथ ब्राह्मण 3रा स्कंद लिखता है, अमेद्य वो पुरुषो अनंतर वदति, उसके अंदर दोष नहीं है. And in him there is no sin. श्वेताश्वर उपनिषद 6:5 में लिखा है, पाप नुदम, उसके अंदर पाप नहीं And in है. him there is no sin. लेकिन बड़े दुख की बात है, But the sad thing is, केनो उपनिषद उसका पहला मंडल 3 पद में लिखा है, says like that. हमने बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, नैति नैति केना पी जानम, अभी भी हम उसको नहीं जानते. I have done a lot of research, but still I don't know him. अगर If खोजा यीशु मसीह के परिचय को नहीं जान पाया, Eunuch could not know who Jesus तो मेरे was, प्रियो कई भारतीय लोग भी यीशु के परिचय को नहीं जान many पाए. Indians don't know who Jesus is. कुछ महत्वपूर्ण बात बताकर समापन की ओर ले जाऊंगा. I'm going to finish it soon. भारतीय दर्शन शास्त्र के 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसका नाम भविष्य महापुराण है. And there is a one scripture which is one of the ancient scriptures. संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में कहीं भी यीशु मसीह का नाम नहीं आता. And nowhere you find the name of Jesus इन ओल्ड टेस्टामेंट. in Old Testament. आप पढ़कर देखिए, अगर आपको कहीं भी यीशु मसीह शब्द मिले तो आप मुझे फोन करना. Nowhere in the Old Testament you'll find the word Jesus Christ. वहां पर यीशु मसीह का परिचय है, संकेत है, कारण है, But विशेषताएं in हैं. every, but there is a description about Jesus in every chapter, every verse, every book. ये बिल्कुल इस तरह कि अगर आप दिल्ली की दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते में माइल्स स्टोन आएंगे जो बताएंगे अब दिल्ली कितनी दूर है. And as you're traveling to a certain distance, you will show a mark saying that how many kilometers are left to go to that city. लेकिन वो माइंड स्टोन डेस्टिनी नहीं है. But that milestone is not the place to go. You are going to another city. बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर आएगा, वो परमेश्वर प्रकट होगा. 44 बार 44 टाइम messianic prophecies in Old Testament about Jesus Christ. 44 times it says that Jesus will come. He will come through different ways. पवित्र शास्त्र बाइबल में उसके स्थान, उसकी मृत्यु, उसके परिवार, यीशु मसीह के विषय में सब कुछ लिखा है. And it's all details about his birthplace, how he will be born, where he will be born, all is mentioned in Old Testament. लेकिन फिर भी यहूदी लोग नहीं समझ पाए, And yet Jewish people never understood जबकि it. यीशु वहां पैदा हुआ. And even in fact Jesus was born in Israel. आज भी इजरायली लोग, यहूदी लोग यीशु को नहीं पहचान पा And रहे still हैं. today people in Israel don't believe in तो मेरे Jesus. प्रिय भारतीय लोगों My की क्या dear गलती है? friend, what's wrong with the Indian people? भारतीय दर्शन शास्त्र 39 टाइम्स यीशु मसीह की भविष्यवाणी करता है. In the Hindu scriptures, 39 times there's a word descriptions of Jesus. मेरे पास समय कम है, आप YouTube पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं. You can go to my YouTube and listen to all the sessions. लेकिन एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बताना चाहता But let हूं. me give you one important prophecy. यीशु मसीह के जन्म से पहले द्वापर युग में, Before Jesus was born, द्वापर युग में, how to translate it now? Dwapar Yug. चलिए ठीक है, हम समझ लेते हैं. Dwapar Yug. Okay. ठीक है. द्वापर युग में एक शास्त्र लिखा गया जिसका परिचय है भविष्य महापुराण. And there is a scripture that was written in very ancient time. भविष्य महापुराण के प्रतिसर्ग वर्ग भरत खंड में लिखा है. In the Bharat Khand it's written, श्वेतवस्त्रम निष्कलंक पवित्र. he will be pure, परिचय यह है कि परमेश्वर संसार में आएगा. that God will come on earth, ओ श्वेतवस्त्रम वो निष्कलंक होगा. and that he will be pure and ईश sinless, पुत्रम वो परमेश्वर का सामर्थ होगा. and God's power will be in him, कुंवारी गर्भ समम उसका जन्म कुंवारी से born होगा. by virgin, और ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठितम, इस संसार के सब नामों से ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम and his होगा. name will be called Jesus Christ. That is said in the Hindu और वो scriptures. क्या करेगा? And it says, what he will do? तत्रत्रम परमात्मम पुण्यदान बलियागनम, वो
अपना लहू बहाएगा, and that he will shed his blood, प्रजापति यज्ञ से भुवनेश्वर नाभि, वो लहू सब जाति के लोगों के लिए and होगा, that blood will be for all humanity. और जो उसकी शरण में आएगा वो उद्धार And those who will पाएगा। come under his center will find बड़े salvation. दुख की बात है, But the sad thing today is, आज हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, we go to restaurant, हमारे पास एक मेन्यू होता है, we have a menu, हम अपनी चॉइस का खाना खा लेते हैं, we choose what we like to eat. हम स्वतंत्र हैं चुनाव के लिए। We are free to choose what we लेकिन like मेरे to eat. प्रियो, मैं आपको एक चेतावनी देना But चाहता let हूँ, me challenge you, my friends. और परमेश्वर का मेन्यू कार्ड नहीं है। But God doesn't have a menu. There is one God. Only one God. परमेश्वर की आप लिस्ट नहीं कर सकते कि You ये can't वाला choose चाहिए, this. वो वाला नहीं चाहिए। You can't say I want this God, that God, this God. No. ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति। सत्य एक है, परमेश्वर एक है, दो नहीं है। God is one truth and there is only one true God. आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? जाकी रही भावना जैसी, तितवा ने देखी सूरत ऐसी, जिसको जो परमेश्वर चाहिए वो बना लिया। And today, whatever we feel like, we make our own God. बाइबल बताती है मेरे प्रियो, But the Bible tells us, friends, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। it is danger to fall in the hand of एक living व्यक्ति जो God. मर गया, If a person who dies, आप उसकी बुराई कर लो, कुछ फायदा नहीं, कोई वो आपको मारने नहीं आएगा। and if he's died, you can talk bad about him, he will never come and kill you or अगर attack एक you. व्यक्ति जो संसार को छोड़ के चला गया, आप उसकी चुगली कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Person died and left, you could say anything bad about him, he will never come back to you. लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूँ, But let me tell you warning. जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। But to fall in the hand of the living God is a जो dangerous लोग thing. अपने मुंह से कहते हैं कि यीशु विदेशी है, Those who say from the mouth Jesus is ये foreigner, ईसाइयों का परमेश्वर that is the है, God of Christians, उनको अपने इन शब्दों का न्याय चुकाना पड़ेगा। you have to be judged for your words. बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हारे एक एक शब्द का बदला देगा। The Bible says that you will be accountable for every word you speak. मेरे प्रियो, My friends, समझदार को इशारा काफी, बच्चे को गुब्बारा। person who's wise just needs a little understanding. That's more than enough. और बच्चे को गुब्बारा, And to a small child, just give a balloon. आप एक बच्चे को गुब्बारा दो, वो खुश है। A child, you give him a balloon, he's happy with the और balloon. अगर समझदार होगा, वो कम बातों में समझदारी को समझ जाएगा। But a man who's understanding will understand with a few words. What एक कहानी बताकर बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। I'll tell you one last story and finish it. एक छोटे बच्चे ने एक नाव बनाई, A small boy made a small boat वो उस नाव को बनाकर बहुत खुश था। and he was very happy he made उस the boat. नाव का परीक्षण करने के लिए वो उसे जल के किनारे ले गया, And one day to test that thing, he took it beside the और वो water उस नाव पर जल को, उस नाव को जल में रख के बहुत खुश था, and he left that boat in the water क्योंकि उसका परिश्रम उसने अपनी आंखों से देखा। because he has worked hard and he saw it. वो तालियां बजाने लगा, He was खुश होने लगा। clapping and he was happy. ओ ये मेरी नाव है, इसे मैंने बनाया It is है। my boat that I ओ made. देखो ये कितनी सुंदर है और कैसे चलती है। And look at this boat is swimming. लेकिन अचानक And suddenly वो नाव गहरे पानी में चली गई। the boat went in the deep उस water. बच्चे का आनंद दुख में बदल गया, That child's joy turned into sorrow. वो निराश हो गया। He became very sad. वो नाव जिसको उसने अपने हाथों से बनाया, वो बहुत दूर चली गई। The boat that he made has gone too far from उसने him. उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम किया, He लेकिन वो tried नहीं। to reach but he could not do it. ओहो, वो रोने लगा। He began to वो अपने cry. घर आया, He came वो home. रोने लगा, He began to cry. उदास हो गया। He was very उसको sad. खाना अच्छा नहीं लगता। He couldn't eat. उसके मन में केवल वो नाव घूमती He थी। was thinking about that boat. और 3 दिन के बाद After 3 days, उसने देखा he saw कि उसने उस नाव को एक दुकान में रखे पाया। he saw that boat in the shop. वो चकित हो गया, He was ये मेरी नाव है, ये यहाँ कैसे आ गई? he was wondered how come this boat, my boat is in that. दौड़कर उस दुकान में गया, He went to the shop. उसने दुकानदार से कहा ये मेरी नाव है। He said to the shop owner, that is my boat. दुकानदार ने कहा मैं ये नहीं जानता, लेकिन said- ये मेरी है। He said, no, it's my boat. इसका मूल्य 500 रुपए है। I have paid 500 rupees for अगर it. तुम्हें ये नाव चाहिए तो तुम्हें 500 रुपए देने If पड़ेंगे। you want this boat, you have to give me 500 वो rupees. छोटा लड़का निराश हुआ, That small boy was very उसने उस discouraged. दुकानदार से कहा He said to the shop मैं owner, वापस आऊंगा, I'll come back one इस day. नाव को बेचना मत, Don't sell that ये boat. मेरी प्रिय नाव है, This is my boat. इसको मैंने बनाया है, I have made it. मैं 500 रुपए लाऊंगा, I'll bring 500 थोड़ी rupees. देर इंतजार करो। Stay for a few days. उसने 3 दिन मेहनत की, He worked very hard for a few उसने days. घास काटी, He cut grasses. उसने बर्तन धोए, He did do all the उसने dishes. 500 रुपए कमाए, He tried to earn and made और 500 वो rupees. वापस उस दुकानदार के पास He में went to आया। the shop owner. उसने उस दुकानदार को 500 रुपए दिए And he gave it to the shop owner the और उस 500. नाव को वापस ले He लिया। bought that boat back. मेरे प्रिय भाइयों, My friend, ये नाव कोई और नहीं है, that boat is not ये someone. आप हैं। It is you. इसका बनाने वाला यीशु मसीह है। The one who made you is you. शैतान ने आपको यीशु के हाथों से छीन लिया था, And the enemy came and stole you. लेकिन यीशु
मसीह संसार में आया, But Jesus came on this उसने earth. एक भारी मूल्य चुकाया। He paid a very expensive उसने आपको price. ज्ञान नहीं दिया, He didn't let you go. उसने अपना लहू बहाया, He shed his blood for उसने you. वो लहू देकर आपको वापस खरीद With लिया। precious blood, he bought you. आप परमेश्वर की संतान हो। You are his child. मैं आपको बताता हूँ, Let me tell you, यीशु मसीह जब क्रूस पे था, when Jesus was on the आप cross, उसके मन में थे, you were in his heart. वो आपके लिए मारा गया। He died for you. वो ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, He's not a God वो of जगत का Christian. सृजनहार है, He's a creator of the whole जगत का universe. मुक्तिदाता He is है। the savior of the वो world. आपसे प्यार करता है। He loves you. मेरे प्रियो, My dear friends, उसके निकट आइए। come near to him. आप कल्पना कीजिए जब वो क्रूस पर था, Can you imagine when he was on the एक cross? एक बूंद उसका लहू जमीन पर गिरता था, Every drop of the blood was falling on the cross. वो रो रहा था, He was crying, शायद आंखों से नहीं, not in the tears, लेकिन मन में। in his heart. He was. उसने संपूर्ण मानव जाति के पाप को उठा लिया था, He has taken the sins of humanity, और वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। and he knew what he was doing. भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, In the Hindu scripture says और श्री रुधिर पत्रायम नमा, उसका लहू बहाया जाएगा। that his blood will be shed, श्री पंचन के नमा, उसके शरीर पर घाव होंगे। that his body will be pierced, श्री वृक्ष शूल अर्थराय नमा, वो उस लकड़ी पर महायज्ञ that करेगा। he will be hanged on the cross, लेकिन मृत्युंजय नमा, वो मृत्यु पर जयवंत हो and जाएगा। then on third day he will come alive. हम जानते हैं यीशु जीवित है, We know Jesus is ये alive. आनंद की बात है। This is a good news we have. लेकिन मैं आपको बताऊं, उस विषय को जब यीशु क्रूस पर था, But that Jesus that was on the वो cross, तड़प रहा था, he was in pain, उसके in agony, शरीर में बहुत दुख था। and he had lots of pain and sorrow in his heart. एक और महत्वपूर्ण बात, Let me tell you one thing. वो क्रूस पर नंगा था। He was naked on the cross. आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर, The one who made the heaven and earth, उसके मुंह पर थूका गया, people spit on him. उसको कुचला गया, He was pierced मेरे और आपके पापों के for लिए। you or my sins. मेरे प्रियो, My dear friends, मैं आपको बताना चाहता I हूँ, want to tell you, यीशु ने अपना नाम, आपका नाम, Jesus took you. He remembered your name. आपका नाम अपनी हथेली पर लिखा है। He took your name वो in his आपसे प्यार hand. करता है। He loves you. जब मैं अपनी पत्नी से पहली बार मिला था, When I met my wife first time, हम ऐसे खेलते थे, we used to play a game. हम हथेली पर नाम लिखते थे। We would write the name of each other. मैं आपको बताता हूँ, इसका आरंभ प्रभु ने किया है। This is the beginning of how God created. जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हम उसका चित्र हथेली पर बना लेते When हैं, we love that person, we make a picture of that हम उसका person. नाम हथेली पर लिख We लेते हैं, write the name of that उसे person. देखते रहते हैं। We look at that name. मेरे प्रियो, My friend, अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। would you stand in your feet? मैं आपको बताना चाहता हूँ, I want to talk to you यीशु आपसे प्यार करता that है। Jesus loves you.